नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबिया जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ की तरफ से आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा, एंड bonsoir in French. Pradeep ji. Abaryako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wonderful. Now, finally, Dhananjay Munde Sahab resigned. Yes. I wish he had done it way back in December. It wouldn't have caused so much of embarrassment. That, of course, is number one. And finally, Devendra Fadnavis has had his way. Number two, Abu Asim Azmi Sahab has been suspended, I believe, from the assembly. Suspended. Yes. And Devendra Fadnavis said there could be further actions which we cannot announce before we do it. Yes. But as Abu Asim Azmi says, the assembly per se can't take any action against him for whatever he has said outside the assembly. That's what he claims. He didn't say that within the assembly or whatever. Within the premises of the... Yeah, but he didn't say it. He said it within the premises of the Vidhan Sabha. But he didn't say it on the floor of the House. In any event, it has snowballed into a controversy. That's it. और जहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जी का प्रश्न है, योगी आदित्यनाथ attack on the opposition continues, especially with regard to the success of the Mahakumbh. वो कहते हैं इतना successful Mahakumbh आज तक कभी हुआ नहीं. Irrespective of the very fact that Akhilesh Yadav ji or India Alliance in Jitna, they tried their best to spread disinformation as per Yogi ji, but their disinformation was not accepted by the people. They rejected it, and 65 crore people came to take dip in Triveni Sangam. That's what he said. Irrespective of the massive disinformation campaign. That's what he says. Yes. Especially making the Samajwadi Party a target. Bilkul. At the moment with us, we have a wonderful panel of guests indeed. We have Pooja Mishra ji of the Samajwadi Party at the moment with us. Pooja ji, namaskar. Pooja Mishra ji, is she there? Dr. Surena Malhotra of the NCP Sharad Pawar, Advocate Dhananjay Junarkar, and of course our friend Mr. Ali Darwala. Ali Darwala साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार कैसे हैं? जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। जुनेकर साहब कैसे हैं आप? नमस्ते सर। नमस्कार। और सुरेना मल्होत्रा जी, you must be a very happy person. Finally you forced the government to get Mr. Dhananjay Munde's resignation. At last, after 80 days. Yes. He should have resigned much earlier. I don't know why he took so much time. Resigned before and should have done it gracefully. Yes. That means he should have done it long time ago. God knows why he didn't. 80 days, that was what Supriya Sule ji precisely as Dr. Malhotra says. Yes, 80 days. And Pooja Mishra ji has now joined us. Pooja Mishra ji, namaskar. Thank you so much for joining us, ma'am. Apologies for yesterday. कल के लिए माफी. सुरेना मल्होत्रा जी, आपको भी कल के लिए माफी. We had a technical issue as a result of which we were not able to. We'll talk about it at some other point of time. और पूजा मिश्रा जी, योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर विपक्ष को लताड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विरोधी पक्ष जो है उन्होंने बहुत डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश करी महाकुंभ के बारे में, लेकिन इतना सफल महाकुंभ आज तक कभी भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। 65 के 67 करोड़ लोग, 67 करोड़ लोग आए और उन्होंने डुबकी लगाई महाकुंभ में वगैरह। तो ये अभी तक मतलब हो गया ना। तो अभी इसके बारे में आगे व्हाई इज ही गोइंग ऑन? मुख्यमंत्री जी क्यों इसके बारे में अभी इतना ज्यादा बोल रहे हैं? पूजा मिश्रा जी, आपको नमस्कार और प्रदीप जी को भी नमस्कार, साथी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। और मुख्यमंत्री जी इसके बारे में इसलिए बार बोल रहे हैं कि जो साक्ष्य होता है ना, जो सत्य होता है, जब उसको मतलब अलग प्रेजेंट करना होता है तो आपको बार रिपीट करना पड़ता है क्योंकि ये अगर इनको लगता है कि महाकुंभ सक्सेसफुल हो गया क्योंकि इतने लोगों ने स्नान कर लिया, तो मुझे लगता है इनको मुबारक हो, क्योंकि महाकुंभ तो सक्सेसफुल तब होता जब यहाँ पे 25 जगहों पे आगजनी नहीं होती। महाकुंभ तो सक्सेसफुल तब होता जब यहाँ पे लोगों की मृत्यु नहीं होती। महाकुंभ तो तब सक्सेसफुल होता जब दिल्ली में भगदड़ नहीं होती और जो लोग जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो अकाउंटेबल होते हैं। हालांकि मुझे पहले पता ही नहीं था कि यहाँ पे प्रभारी भी बनाए गए हुए थे महाकुंभ के प्रभारी स्वतंत्र देव जी हैं। ये मुझे डिबेट में 2-3 दिन पहले ही पता चला, किसी भाजपा के प्रवक्ता ने बोला कि नहीं प्रभारी थे। हमने कहा पर पूरे महाकुंभ के दौरान तो प्रभारी दिखे ही नहीं। तो उसको चीज को जो कमियां है ना उसको छुपाने के लिए जो है
बार बार ये और रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि अभी जो चर्चा होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में चर्चा होनी चाहिए अंसल को लेकर के कि अंसल दिवालिया घोषित हो गया हुआ है, वो यहाँ के उत्तर प्रदेश के नागरिकों का पैसा लेकर के बर्बाद कर दिया हुआ है, इतना घोटाला कर दिया हुआ है। ये जो मूलभूत उत्तर प्रदेश की समस्याएं हैं जिसपे जो है योगी आदित्यनाथ यहाँ की सरकार फेल है, उन सब चीजों को छुपाने के लिए बार बार महाकुंभ पे आ जाते हैं कि ले दे करके एक भाजपा सरकार ने एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश किया है। अब यूं मैं कहूं कि हिंदू सेंटीमेंट को एकदम बिल्कुल कमजोर सा शो कर दिया हुआ है कि अगर जरा सा भी कोई भी कुछ कहेगा, जरा सा भी कहीं पे कुछ शब्द निकल करके आएंगे, अगर वो दूसरे धर्म का हो जाएगा या विपक्षी पार्टी का हो जाएगा तो ले दे करके हिंदू का जो है सेंटीमेंट ही हार्म हो जाएगा, क्योंकि भाजपा का सेंटीमेंट हार्म हो रहा है। सच्चाई ये है भाजपा का ही लॉस और भाजपा का ही बेनिफिट हो रहा है। पूजा मिश्रा जी, मगर मौका तो आप ही दे रहे हैं, मौका तो आप ही रहते हैं। अबू आजमी जी औरंगजेब के बारे में योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पर उत्तर प्रदेश के फ्लोर में भी कहा कि यू आइडोलाइज औरंगजेब, समाजवादी पार्टी आइडोलाइजेस औरंगजेब, और औरंगजेब की जो मेंटालिटी है वही पूरे आप एक समाज को आपके साथ रखे अपीसमेंट पॉलिटिक्स करना चाहते हो। नो, व्हाई यू आर गिविंग द अपॉर्चुनिटी? अबू आजमी हिमसेल्फ इज गिवन द अपॉर्चुनिटी, ही हैज बीन सस्पेंडेड फ्रॉम विधानसभा। प्रदीप जी आप सही कह रहे हैं कि जब जो है विधानसभा में फ्लूइड लैंग्वेज की बात होती है और हम कहते हैं कि भाई संस्कृत और उर्दू भी होनी चाहिए, तो हम अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं कि आप जो है उर्दू भाषा की निकालिए धर्म, कि आप फिर से यहाँ वेपनाइजेशन चालू कर दीजिए, वेज क्रिएट करना चालू कर दीजिए। अभी आपने अबू आजमी जी के स्टेटमेंट की बात की है, मैं मानती हूँ, चलिए ठीक है, अबू आजमी जी ने हालांकि इतिहास में लिखा हुआ है, मैं चाहूँ तो आपको रेफरेंसेस भी दे सकती हूँ, मैं बहुत पीछे नहीं जा करके, मैं प्रोफेसर प्रदीप केशरवानी जी जो कि सर्वेश्वर डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपने जो है लिखा हुआ है और रिसर्च किया हुआ है। उन्होंने लिखा है कि सोमेश्वर मंदिर जो कि जो है यहाँ पे है, प्रयागराज में है, रेल घाट पे है, और चित्रकूट में, और बहुत सारे ऐसे जो हिस्ट्री में मिलते हैं जहाँ पे ये लिखा गया हुआ है कि मुगल एम्पायर के दौरान जब औरंगजेब जो है शासक थे तो उन्होंने जो है मंदिरों के लिए भी डोनेशन दिए थे, मंदिरों के लिए भी कार्य कराया था। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ जो है मंदिरों को ही तोड़ा था, उन्होंने जो है मस्जिदों को भी तोड़ा था, और जो शिया के मुहर्रम को और सूफी प्रोसेशंस पे भी बैन लगाया हुआ था, और ये इतिहास को ही कोट किया। अबू आजमी जी ने बार बार बोला कि जो इतिहास में लिखा गया हुआ है उसी को कोट किया गया हुआ है। चलिए मैं मानती हूँ, फिर भी आपको बहुत पीड़ा हो गया, बहुत कष्ट हो गया, लेकिन प्रदीप जी ये बताइए कि यहीं पे डिप्टी सीएम है राजस्थान की दिया कुमारी, वो जो है आती है राजा जयसिंह के परिवार से, और आपको पता होगा कि समोसेर राजा जयसिंह कौन थे? समोसेर राजा जयसिंह कमांडर थे 1665 में, जब मुगल एम्पायर ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है अटैक किया हुआ था, वही रेस्पॉन्सिबल थे, उन्होंने ही छत्रपति शिवाजी महाराज को हराया, और फोर्ट की ट्रीटी साइन हुई जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने 43 फोर्ट्स मुगल एम्पायर को देने पड़े, और अपने पुत्र जो है छत्रपति संभाजी को उनके वहां पे मुगल कोर्ट में मनसबदार बनाना पड़ा। तब आपको पीड़ा नहीं हुई, आपको कचोटना चाहिए था जब जो है दिया कुमारी उनकी पैरवी कर रही थी। तो ऐसा नहीं है कि जो है उन्होंने पैरवी नहीं की, उनकी पैरवी भी की, और बोला भी कि भाई ये इतिहास बदले जाए, या फिर उनकी मूर्तियां लगाई थी, मूर्तियों पे माल्यार्पण भी करती, तब कहीं पे कोई चोट नहीं पहुंचती है। चोट जब पहुंचती है जब एक जो है कोई मीडिया कर्मी कुछ पूछता है, उसमें इतिहास में लिखी हुई बातों को अगर एज इट इज बोल दिया जाता है, उसके बाद में उसको रिट्रैक्ट भी किया जाता है। रिट्रैक्ट करते हैं कि नहीं, अगर किसी को आहत पहुंची, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता, या तो इतिहास में जो लिखे हुए चीजों को उनको बदल दिया जाए। मेरी ये मैंने नहीं लिखा हुआ है, ना ही ये मेरी खुद की मंशा है, जो लिखा हुआ था उसको एज इट इज बोल दिया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आप इतना वेज क्रिएट करें। मुझे लगता है कि भाजपा तो ऐसे बस चाहती है कि अगर कुछ भी नहीं है तो भी वो क्रिएट कर लेगी वेज, क्योंकि उसका टारगेट ही यही होता है कि हमें कम्युनल टेंशन क्रिएट करना है। जी दुरुस्त बात है, लेकिन जहां तक के इतिहास का प्रश्न है, आपको लगता नहीं है कि वी शुड नाउ बी टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स? बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि औरंगजेब वाज अ क्रीचर ऑफ हिज टाइम. Whether it was Aurangzeb or anybody else, they were creatures of their time. They should be analyzed, not judged. मेरा ये मानना है। इसके बावजूद कि मैं सिख परिवार से आता हूँ और हमारे 9वें गुरु साहब का सिर कलम कराया गया चांदनी चौक के ऊपर, उनके जो 3 फॉलोअर थे, मत्ती दास, सत्ती दास और दयाल दास, उनको बड़ी बेरहमी से मारा गया। हमारे 10वीं पातशाही के जो 2 साहबजादे थे, उनको दीवार में चिनवा दिया गया। इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि हिस्टोरिकल फिगर्स नीड नॉट बी जज्ड। अरे भाई अभी औरंगजेब थोड़ी है यार, हो गया ना खत्म, मुगलिया राजपाट अब खत्म हो गया, अब तो भारत का संविधान है ना,
तो आपको क्या लगता है, आपको लगता नहीं कुछ ज्यादा हो रहा है ये? डोंट यू थिंक पूजा मिश्रा जी? बिल्कुल ज्यादा हो रहा है, और यही बात जो है अबू आजमी जी भी कह रहे हैं। और उनको मीडिया कर्मी ने औरंगजेब का नाम लेके के प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने बोला कि अगर जिस तरीके से पोर्ट्रेट किया जा रहा है, अगर हिस्ट्री को देखा जाएगा तो हिस्ट्री में उनके अच्छे कार्य भी दर्ज है। हो सकता है कि आपको भी पता होगा कि कहीं किसी को, अगर आप कहते हैं ना कि वो कैरेक्टर को पढ़ा जाए, तो कैरेक्टर को जो पढ़ेगा जैसा चाहेगा वैसे परसीव करेगा। मैं इतिहास की छात्रा हूं नहीं, बाय डिफॉल्ट जो है मैं साइंस की छात्रा हूं, तो हमें इतिहास की उतनी गूढ़ जानकारी नहीं जितनी एनसीईआरटी में क्लास 10 तक मिली है, उतनी ही जानकारी जो है इतिहास की है। और ये बिल्कुल जो फैक्ट बोले गए, मैंने उस फैक्ट को क्रॉस चेक किया, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्रॉस चेक। मैंने दिया कुमारी के बारे में भी जो है बिल्कुल पूरी तरीके से जा करके, मैंने कहा कभी गई भी नहीं बैक, बस डिबेट के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है मुझे झूठ बोल रहे हैं, और जब तक मेरे पास फैक्ट नहीं होता है मैं उसको बहुत स्ट्रांगली बोल नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं इस पर चर्चा कर रही हूँ। हालांकि इस पे जो है चर्चा अब बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि अबू आजमी जी ने भी कहा कि इस पे चर्चा नहीं हो करके दूसरी चीजों पे चर्चा हो, जो कि मूलभूत समस्याएं हैं उन पे चर्चा होनी चाहिए। दुरुस्त बात है। सो लेट्स गो अक्रॉस टू दारूवाला साहब, अली दारूवाला साहब, don't you think it's high time that we stop talking about Aurangzeb and people like that? What do you think, Daruwala sahab? 100%. The scars that have been left by the Mughal regime throughout Yes. 900 years, Yes. beginning from there and ending at the British, this India cannot forget. For us, as we said, and as all our honorable seniors in the party said, क्या भारत की जो असली हमें तो इंडिपेंडेंस 1947 में मिला, पर जो यहाँ पे जो असली आज़ादी जो हमको मिली है और ये देश ने जो प्रगति किया है, हमारे लिए तो 2014 से ही शुरू होता है। शाबाश। मैं तो क्या वहां से बात। सब जानता हूँ, उसके पहले का इतिहास में नहीं जानता हूँ, ना मुझे जानना है, ना मुझे ये 60 साल का जो इनका अनशन हुआ है, ये जो कांग्रेस ने यहाँ पे जो बर्बादी की है समाजवादी पार्टी, ये आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव वर्क। This destructive discussion is totally not my domain and I'm not interested anymore, राजीव सर। जी। क्या हो रहा है आज, क्या हो रहा है? ये महाकुंभ के ऊपर पूजा मिश्रा जी ने जो डिबेट्स किए हैं, जो अपना टाइम वेस्ट किया है, इट हैज ओनली शोन हर इग्नोरेंस। पूजा मैम का इग्नोरेंस दिखा है। जितने भी लोग कुंभ में जाके वापस आए हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, संघ का जो ट्रेनिंग हो ना वैसा शुरू होता है ग्राउंड ग्रास रूट लेवल से। ये जो स्टूडियो में बैठ के बोले ना ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, मैं तो कहता ये भी रोक सकते थे ना। ये हुआ क्यों? ये क्या पाकिस्तानी नागरिक है क्या जो यहाँ पे हो रहा है नहीं देखते बैठे हैं, ताली बजा रहे? इन्हें शर्म आना चाहिए। मैं यहाँ पे नागरिकों से बात करके डंके के चोट पे कह सकता हूँ 65 crores of people who have come back from the Mahakumbh event, the mega event, the gala event is इनह्यूमन। ये शायद कोई देवी शक्ति है, ये शायद ऊपर से कोई ताकत जो है जिसके वजह से ये हुआ है, और ये कार्य करने के लिए स्वयं भगवान ने मोदी जी और योगी जी को चुना है। आज मैं ये कहेंगा तो भी ये गलत नहीं साबित हो रहेगा। दारूवाला साहब, महाराष्ट्र असेंबली में ऑल पार्टीज irrespective of the political lineage came equivocal and condemned Abu Azmi's statement. कहा ये छत्रपति शिवाजी, छत्रपति श्यामबाजी महाराज का देश है, या औरंगजेब को चाहने वालों को कोई स्थान नहीं है। अंदर औरंगजेब को जो तारीफ करते हैं हम सब उनका विरोध करते हैं। It was unequivocal across all political lines and everybody came together and suspended Abu Azmi ji from the Vidhan Sabha. Everything now इसमें political unity दिखने को मिला। सुनो मेरी बात, ये अबू आजमी ये बहुत एक छोटी चीज है, इनसिग्निफिकेंट चीज है। वो लाइमलाइट में आने के लिए आज शायद वो लाइमलाइट में आ गए और वहां से वो विधानसभा के बाहर चले गए। उद्धव ठाकरे जी का क्या हो गया? जो औरंगाबाद आज जो संभाजी नगर कहलाते थे, आखिरी दिन जब उनका जब वो कार्यकाल खत्म हुआ था, वो लेटर के ऊपर उनकी साइन करने की हिम्मत नहीं थी सर। वो भारतीय जनता पार्टी ने आके वो संभाजी नगर और वहाँ पे धाराशिव करके किया है सर। ये तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, ये जो हमारी मंशा है और हमारी जो ईमानदारी है तो हमारे काम में दिखती है। उद्धव जी जो है टोपी पहन के मुस्लिम बाहुल एरिया में जाके उनके नवनिर्वाचित नेता बनने जा रहे थे, तो उन्हें भारत की जनता ने किधर ले जाके बता दिया। आज 5-10 एमएलए लेके वो बैठे हैं। ये सब जो फेक नैरेटिव चल रहे हैं ना, नहीं पूरे साथ में मिलके मैं बोल रहा हूँ सर, ये सारे जो लोग हैं, ये जो औरंगजेब की, अकबर की, बाबर की और हुमायूं की जो पैरवी करेंगे ना,
उनके साथ में ऐसे ही होने वाला है. नाउ देयर इज नो मर्सी, नाउ देयर इज नो फॉरगिविंग. विकसित भारत So in effect, so what are you saying? I don't understand. Ali Daruwala साहब, विकसित भारत में बनाने के लिए जो भी नैरेटिव आएंगे, सर ये जो भी विकसित सोच भारत बनेगा आएंगे, इससे? इन्हें जो मेरी जो आइडियोलॉजी है 2047 जहाँ पे हिंदुस्तान को हमें लेके जाना है, जी। उसके बीच में जितने भी ये फेक लोग आएंगे, इनके साथ में तो ऊपर दारूवाला वाला साहब, ऐसा ही छोटी सी हशर बात पूछ रहा हूँ करेगा. आपसे, अली दारूवाला साहब, एक छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूँ. तो आप विकसित भारत बनाएंगे, हर उस शख्स को आप सूली पे चढ़ा देंगे जो आपसे आपके विचारों से जरा भगवान भी माफ नहीं करेगा. डिफर मैंने नहीं करेगा. कहा सूली पे चढ़ेगा. राजीव सर, यू करेक्ट स्टेटमेंट. बोलिए. मैंने कहा उन्हें भगवान माफ नहीं करेगा. भगवान माफ नहीं करेगा. चलिए, तो अब आप यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ नाउ. So isn't that wonderful? No, I didn't say So that. so we should be calling you a new prophet. सर ये देवताओं की जमीन है सर. क्या यहाँ बात पे है, जो है, यहाँ पे जो हिस्ट्री, यहाँ पे जो इतिहास घड़ा है सर, और ये देश को जो बर्बाद करने के लिए उठेगा ना, वो हाथ को ऊपर वाला मतलब जो छोड़ने भी वाला आपसे डिसएग्री करेगा, जो आपके विचारों से सहमत नहीं होगा, वो देश को बर्बाद करने वाला है. कहने का मतलब ये हुआ, ये कह रहे हैं सर हम? 100%. इनकी ये विचारधारा से क्या देश तरक्की कर रहा है? क्या बात है औरंगजेब की सर, वाहवाही wonderful. का Let देश me get तरक्की Dr. कर रहा है. सुनैना मल्होत्रा in. टोपी पहन के क्या देश तरक्की कर रहा है? यहाँ पे जो पत्थर लेके जो कल जितेंद्र अवार्ड आए थे, उससे क्या देश तरक्की कर रहा है? योगी को जो दुनिया वाह कर रही, ये उनकी निंदा कर रहे, उससे क्या देश तरक्की कर रहा है? ये एनसीपी कांग्रेस वाले ने बहुत तरक्की करे. आज जो हुआ है तरक्की 2014 के बाद हुआ है, दिखता नहीं है क्या लोगों को? मीन्स आपको ये क्या बताना पड़ेगा? 53 फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहे, रोड्स बन रहे, एयरपोर्ट्स बन रहे, यहाँ पे शिपवे बन रहे, शिपयार्ड्स बन रहे, यहाँ पे लाइट 24 आवर्स घरों में है, नल में पानी आ रहा है, हमारे देश में सुरक्षित है. 10 साल में एक टेररिज्म अटैक नहीं है. ये क्या विकास नहीं है? और क्या चाहते हो आप लोग? Right. So Dr. Sunaina Malhotra, जी. you've heard the discussion up till now. Anyone who disagrees with the BJP is anti-national. जी बोलिए. ये जो चीजें हैं, ये जो Urban हमेशा Naxals. बोली जाती है, ये बिल्ड किया, वो बिल्ड किया, मगर जो बेसिक मुद्दे हैं वो हम लास्ट कितने इसमें हम बेसिक मुद्दे निकाल रहे हैं कि व्हाट अबाउट द इन्फ्लेशन, व्हाट अबाउट द अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल, व्हाट अबाउट जो नौकरियां हैं वो कहाँ है? ये सब नहीं, बस आपके राज में तो सर सब चीज तो फोकस कर रही थी ना. नहीं, मुझे बोल के दीजिए ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं आप बोल रहे थे तभी हम लोग भी सुन रहे थे भगवान की बातें कि आप कैसे मतलब यहाँ पे आ गए, भगवान, आप भगवान का हाथ है, आप वैसे बातें बोल रहे थे, हम लोग भी सुन रहे थे. मैं कह रहा हूँ ना, मोदी जी भगवान का अवतार है. वो तो मोदी जी ने तो वो तो कहा ही है, उसके बारे में तो काफी अलग से डिस्कशन एक होना चाहिए. जो भी है, मगर जो और भगवान का हाथ है, तो क्यों ना इधर महाराष्ट्र में महिलाओं को सुरक्षा मिलती है? क्यों ना वो अपना मैजिक वैंड को घुमा के महिलाओं को सुरक्षा मिल सकती है? क्यों ना 80 दिन वेट करना पड़ता है किसी को जस्ट एटलीस्ट ये करने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए कि बाबा गुनाह हो गया है? वो भी धनंजय मुंडे जैसे लोगों को बोलना पड़ता है कि नहीं, इट इज आई एम नॉट वेल, दैट्स द रीजन आई एम डूइंग इट. Don't they feel ashamed of saying such a thing? Why can't somebody owe up to their problems? Why can't somebody take the responsibility? I mean, why was Ajit Pawar did not ask him to resign? Why didn't Devendra Fadnavis ask him to resign? ये सब बातें क्या दर्शाती है? ये सब बातें विकास की बातें हैं. जब महिला इतनी असुरक्षित है, देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस. अभी ये सब बातें संतोष देशमुख की बातें हो रही थी, तो उधर दूसरी भी एक केस आगे आ गई है कि जहाँ पे मतलब हॉट रॉड से एक आदमी के मतलब पैर पे चटके दिए हुए हैं. दैट इज ऑल्सो कितनी मतलब विचलित कर रही है सब चीजें. लास्ट 2 days तो लोगों ने मतलब पीपल हैव नॉट बीन एबल टू स्लीप एंड दे हैव सीन ऑल दीज थिंग्स. और इसमें मतलब तातड़ी से कुछ आप ये नहीं कर सकते? तो कहाँ लेके जा रहे हैं आप हमारा महाराष्ट्र? कहाँ कुठे लेके जा आमचा महाराष्ट्र? डॉक्टर मल्होत्रा जी, देवेंद्र फडणवीस is trying to establish Mr. Clean Image. Mr. Clean Image, उन्होंने कहा मैं कोई चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा. No fixers will be allowed as PA, PS, OSD. Absolutely clear. बोले कि I enforced, indirectly कहा कि I enforced Dhananjay Munde's resignation. Kokate got a stay from the higher court, so we cannot. So he is establishing that I will not accept any nonsense in the government. कोई भी, और मंत्रियों को भी और बीजेपी के लीडर्स को भी उन्होंने क्लियर कट कहा across the alliance, I don't want anything that will defame the government. I will not tolerate any hanky panky. Do you believe when he says that? The Mr. Clean Image of Devendra Fadnavis. See, the thing is,
he must have. I'm very sure that he must have seen these photographs long time before. What is the Supriya Sule ji? She's asking one simple thing: that why did it take 80 days for such a gruesome crime? This is not a crime, regular crime. This is an absolute gruesome crime. I mean, everybody had tears in their eyes when they saw the photograph. And such a thing, I'm sure Devendra Fadnavis ji, Ajit Dada, everybody has seen these things. So why wasn't action taken fast? Why were they given so much of protection? And till Who were now, the leaders? ma'am, till now, Mr. Dhananjay Munde's name is not there in the charge sheet, nor in the FIR. Correct. Ji. And he's been saying that, okay, I'm not well, I'm having this problem, that problem, and that's the reason. I mean, this is absolutely. और इसमें- How can people of Maharashtra have confidence in this government? And the other thing which what is, the other Fadnavis ji charge was- which is what he being made, says ma'am, and the things are done, there is a disparity in that. the other allegation which is being made is that the meeting for extortion took place at Mr. Dhananjay Munde's house. Correct. जो मीटिंग हुई है कि भाई कितना डिमांड करना है, Pathetic it is. How horrible. I mean, we can't imagine. It is really horrible. And Devendra Fadnavis should take a strong action. He should have taken it immediately. If he would have taken immediate action, people would have really appreciated. I mean, even we would have said, ki, oh, no, okay, whatever he says, and he's doing it. जी, let's go across to No, I Mr. just want to, Junakar. Dr. Malhotra, what Devendra Fadnavis is trying to justify the delay. He says, मैं इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं पुलिस, सीआईडी, एसआईटी के इन्वेस्टिगेशंस में. मैं डे टू डे अपडेट्स नहीं ले रहा हूं. मैं चार्जशीट फाइल करने के बाद, चार्जशीट फाइल इज द अल्टीमेट थिंग. आफ्टर दैट, when the information came to me, I started proceeding on that. So, is he not showing himself to be a statesman, that he doesn't involve himself in day-to-day investigation? आप final report पेश कीजिए, उसके बाद जो action लेना में. How do you see his statement? Do you believe when he says that? Definitely not. I mean, do you think that they must not have seen all these photographs? It is a fact that they must have definitely seen the photographs, and they also know that how the police were involved, how people were scared of the police. Other people, the political people also, the lady, she's also said that she was scared for her brother was, Sushma Andhare ji also said that her brother was also hit or something like that. I just saw the video. I mean, such things happening, and so they know that police are in hand in glove with the culprits. So he should have intervened before, and he should have taken a strict action. It was all in his hand. एटलीस्ट धनंजय मुंडे जी को रिजाइन करने के लिए बताना, ये तो उनके और अजय दादा के हाथ में था, एंड ही शुड हैव टेकन अ स्ट्रांग. और मैम चलते इसके पहले कि मैं धनंजय जुनरकर साहब के पास जाऊं, ही इज नॉट स्पोकन एट ऑल अप टिल नाउ. व्हाट अबाउट मानिकराव कोकाटे साहब? कोकाटे साहब जो हैं वो तो कन्विक्ट हो गए हैं, ठीक है, स्टे लेकर के आ गए हैं, लेकिन फिर भी कैबिनेट में है मैम. Exactly, Abhi. Now, whatever the legal procedure that will take, but then he should also resign. They should put. He's been convicted. He's been convicted of fraud. Both he and his brother. It is a fraud. किसी और का जो लो इनकम जिसको मिलता उनको नहीं मिला, इनको मिल रहा है. दुरुस्त बात. Correct. So these are the things they should not do. और यहाँ धनंजय जुनरकर साहब अशोक चव्हाण साहब के साथ ऊपर सिर्फ आरोप लगा था, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में सिर्फ आरोप लगा था उनके खिलाफ, और कांग्रेस ने फौरन उनसे इस्तीफा मांग लिया. इसी तरीके से पवन बंसल साहब के खिलाफ आरोप लगा था कि उनका जो ऑफिशियल टेलीफोन है एज रेलवे मिनिस्टर उनका नेफ्यू इस्तेमाल कर रहा था, उनसे भी आपने इस्तीफा ले लिया. इसी तरीके से अलग अलग 3-4 और एग्जाम्पल हैं. लेकिन जहां तक के भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, वो तो इस्तीफा नहीं लेते सर लोगों से. जुनरकर साहब बताएं. सर यही तो है. ये सब जितने भी इस्तीफे हुए, ये सब 2014 के पहले के इस्तीफे हैं. 2014 के बाद भगवान खुद सत्ता पे आ गए इनके, और उन्होंने जिस तरह से बीच में उनके कमेंट भी था कि भाजपा की गवर्नमेंट में इस्तीफे की दुकान हमेशा बंद रहेगी, ये कमेंट उन्होंने बिल्कुल प्रेस में आया है, प्रेस में हमने देखा है. तो ये 2014 के पहले जो हो रहा था वो सब गलत हो रहा था. 2014 के बाद इन्होंने कहा कि ये सब ठीक हो रहा है. जी, बट जुनरकर साहब, बात यह है कि फडणवीस साहब कह रहा है कि महिला सशक्तिकरण, जो डॉक्टर मल्होत्रा जी ने जो प्रश्न उठाया कि महिला इज अनसेफ, महिला अनसिक्योर, सुप्रिया सुले जी ने कहा महिला इज अनसिक्योर. बहुत सारे, चाहे वो पुणे का मतलब केस हो, अलग अलग केसेस में महिला इज अनसेफ. देवेंद्र फडणवीस जी बोल रहे डेवलपमेंट भी कर रहा हूं, मगर महिला सशक्तिकरण, देवा भाव 2 इंस्टॉलमेंट महिला दिन में,
जो लाड़की बहन स्कीम का 2 इंस्टॉलमेंट एक साथ रिलीज करने वाले देवेंद्र फडणवीस जी, तो क्या अलग अलग 1 करोड़ जो एक लखपति बहन वो बना के छोड़ेंगे देवेंद्र? तो एक से एक जो देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे, यू डोंट बिलीव दैट जुनाकर साहब, क्या आपको लग रहा है कि शंका है, दिख रहा है सब कुछ, इंस्टॉलमेंट 8 तारीख को पहुंचने वाले सबके अकाउंट में डबल इंस्टॉलमेंट? क्यों ये महिला सशक्तिकरण का उच्चतम उदाहरण नहीं है? सर केवल पैसे के 1500-2000 रुपए आपके अकाउंट में पहुंचने से महिला का सशक्तिकरण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया, लेकिन उसके जो कितने करोड़ों का फंड खुद को चमकाने के ऊपर उन्होंने खर्च कर दिया। जितने लोगों ने आपने इनके एमपी देखे, जो ओलंपिक के जो मेडल गोल्ड मेडलिस्ट, अपने को 8-9 महीने तक उन्होंने वहां आंदोलन करना पड़ा, उनको वहां बैठना पड़ा, उनके ऊपर इन्होंने ध्यान दिया नहीं। स्वारगेट की केस अभी ताजी है, बदलापुर की केस आपने देखी है। तो केवल पैसा, ये टारगेट से आप कोई भी महिला को सक्षमित कर देंगे, ये कहना अपने आप में बेईमानी है। और ये भी आप देखिए कि ये पैसा देने के लिए अभी और जितने दूसरे चीज है उसमें से लोग पैसे महंगा कर रहे हैं, वहां से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अभी नंबर प्लेट का HSRP का नंबर प्लेट देखिए, उसका जो 155 में गुजरात में मिल रही है, गोवा में मिल रही है, वो 550 रुपए में महाराष्ट्र में मिल रही है। तो हर जगह से पैसे निकाल के, खर्चे निकाल के कहीं ना कहीं खड्डा करके कहीं भरने का कोशिश कर रहे, ये सब गलत हो रहा है सर जी। बट एक क्रिकेट का, मैं बिकॉज आज क्रिकेट का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आपका स्पोक्स पर्सन शमा मोहम्मद का कहना जरूरी है? पूरे बैकलैश हो गया पूरे बीजेपी की तरफ से, बीजेपी कहना है कि 90 टाइम्स राहुल गांधी फेल हो गया, आप उसके बारे में बात नहीं करते। रोहित शर्मा के बॉडी के पीछे पड़ा है, रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस के पीछे पड़ा है व्हेन ही स्कोरिंग। क्या जरूरी था शमा मोहम्मद का कहना? शी इज एन ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाउ डू यू सी दैट जुनारकर साहब? एक बड़ा बैकलैश आ गया कांग्रेस में, और राहुल गांधी जी के परफॉर्मेंस से एकदम स्क्रीन पे आ गया कि हाउ बैडली ही हैज परफॉर्म। नहीं सर, ये इस चीज को हम लोग दो तरफ से अपने को देखना पड़ेगा कि कोई भी अगर खेल है तो खेल में आदमी का फिटनेस बहुत मायने रखता है। और अगर उनका जो फिटनेस है वो फिटनेस और जो दूसरे प्लेयर्स है उसके मुकाबले कम है तो बोलना कोई वैसे गुनाह नहीं था। लेकिन वो केवल मुस्लिम प्रवक्ता है, मुस्लिम है, उसकी जात को देख के टारगेट किया गया है। अगर ये रोहित शर्मा फिट नहीं है, अगर ये हिंदू किसी का बयान होता तो आपके ध्यान में ये आता नहीं। जरूरत क्या पड़ी है आपको? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस को क्या जरूरत पड़ी है इसमें पढ़ने की? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा सर, क्यों आप इतना मौका देते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि आपकी ऐसी की तैसी करें? वो क्या कर रहे हैं सर आप जुनारकर साहब? मतलब नहीं, हर चीज को ये लोग घुमा के फिरा के हिंदू मुस्लिम पर लेके जाते हैं। तो क्या जरूरत क्या पड़ी थी डॉक्टर शमा मोहम्मद को? हमें तो ऐसा लगता है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, ये डॉक्टर शमा मोहम्मद ने जो कमेंट दिया, बाय द वे दिस मे कम एज अ सरप्राइज टू यू, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस। केरला क्रिकेट एसोसिएशन जो है, दे आर फ्यूमिंग, उनको बहुत गुस्से में है। करण नायर को अभी तक आपने चांस नहीं दिया वापस इंडियन क्रिकेट टीम में बुलाने के लिए। 2 और केरला के प्लेयर हैं, उनको भी बाहर रखा हुआ है, इसलिए शायद शमा मोहम्मद जी को आगे कर दिया होगा कि आप ये बोल दो, ताकि एटलीस्ट देयर शुड बी सम डिस्कशन विद रिगार्ड टू द केरला क्रिकेट एसोसिएशन। बट एनीवे दैट्स क्रिकेट पॉलिटिक्स। बट ऑल आई एम सेइंग इज, कमिंग बैक टू पूजा मिश्रा जी, आदरणीय सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी बोला है कि वो कौन है, वो अबू आसिम आजमी, उसको यहाँ पे भेज दो उत्तर प्रदेश में, हम उपचार कर देंगे। कमबख्त बोला है उसको, पता नहीं क्या कुछ बोला है। तो मतलब योगी जी, अब योगी जी सेट हिमसेल्फ अप एज अ नेशनल लीडर। महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है भाजपा की जी, वो इनकम्पोटेंट है, वो जो करने के लायक नहीं है, कार्रवाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लायक नहीं है। इसलिए जो है मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश के वो करना चाहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थोड़ा साउथ इंडियन मूवीज से ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। मैंने कई बार जो है मुख्यमंत्री जी को अपने ऐसे ही देखा। अभी भाजपा के सॉरी इससे पहले जो प्रवक्ता थे भाजपा के, इसके मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, तो राजीव जी वो कह रहे थे कि मैं इग्नोरेंस हूँ, आई शुड बी अशेम्ड ऑफ, यस आई एम अशेम्ड ऑफ माय चीफ मिनिस्टर, कि वो जो है खुद को एक साउथ इंडियन हीरो जैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटती है, लखनऊ जैसे शहर में, कैपिटल सिटी में, दिन दहाड़े महिला के साथ में बदतमीजी होती है, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़े होकर के 2 नाम चुन करके बोलते हैं, और दोनों नाम जो है पता चलता है कि वहां पे मौजूद भी नहीं थे। वो सिर्फ जो है क्योंकि वो यादव और मुस्लिम नाम मिल जाता है उनको, वो बोलते, वो चार्ट जब जो है कार्रवाई की जाती है पता चलता है ये गलत नाम थे।
मैं अशेम्ड हूं कि हमारा मुख्यमंत्री को जो भी उनके सलाह में या फिर जो उनको पर्ची दे रहा है वो भी ये नहीं बता पा रहा है कि ये गलत है। मैं अशेम्ड हूं कि उत्तर प्रदेश में जो इनके मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल जी, उनके कार्यकर्ता हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होते हैं, उसकी बेटी को उठाने की धमकी दी जाती है और इनके मंत्रिमंडल के मंत्री हैं वो जो है अनुप्रिया पटेल जी, और कहती है पुलिस से कि भाई कैसा जीरो टॉलरेंस चल रहा है। वो 15 साल के बच्चे को उठाने की धमकी दी जा रही है दिन दहाड़े और उनका कार्यकर्ता हॉस्पिटलाइज है। इस तरीके से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में हो रखी हुई है। मैं अशेम्ड हूं कि उत्तर प्रदेश में जो है एक तरफ महाकुंभ में लाशें पड़ी होती हैं और एक तरफ मलबा पड़ा होता है और यह सरकार मजदूरों को मजबूर करती है कि आप पहले जो होर्डिंग फटी हुई है उसको लगाइए ताकि ये छुपाया जा सके कि यहाँ पे भगदड़ मची थी। मैं वाकई में अशेम्ड हूं कि हमारा उत्तर प्रदेश महिला अपराधों में बढ़ोतरी पे चल रहा है, ये एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। मैं वाकई में अशेम्ड हूं कि हाथरस में बेटी को रात के 2 बजे जला दिया जाता है, उसको देखने तक नहीं दिया जाता, उसके परिवार वालों को जो है उसकी बेटी को दिया भी नहीं जाता कि वो अंतिम संस्कार कर सके। मैं अशेम्ड हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुप रहते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लोग किसानों की हत्या कर देते हैं उनको कहते हैं कि नहीं, अजय मिश्रा का बेटा जो है आशीष मिश्रा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाया हुआ है, इसलिए जो है अजय मिश्रा को टिकट दिया जाएगा, आशीष मिश्रा को नहीं दिया जाएगा। मैं अशेम्ड हूं कि ब्रिजभूषण शरण जैसे व्यक्ति के, क्योंकि उसके ऊपर इतना हंगामा मचता है तो ठीक है इसको टिकट काट दिया जाएगा, लेकिन उसके बेटे को दिया जाएगा टिकट। मैं अशेम्ड हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता की बात ना करके वो खड़े होते हैं सदन में। अशेम्ड हूं कि वो अपनी बातों को जो है अमल नहीं करते हैं। उन्होंने 69,000 भर्ती को लेकर के राजीव जी कहा था 24 घंटों में जो है अभ्यर्थियों के साथ में इंसाफ किया जाएगा, और राजीव आज की डेट है अब तक जो है वो अभ्यर्थी परेशान है और उनके साथ में इंसाफ नहीं हुआ है। तो मैं अशेम्ड हूं, आप सही कह रहे हैं। और मैं ये अशेम्ड हूं कि भाजपा के लीडर्स, भाजपा के एमपी ये कह देते हैं कि 2014 में जो है आजादी मिली। मैं जो है स्वतंत्रता सेनानी संग्राम के परिवार से आती हूँ। मेरे पर नाना जो है हजारी प्रसाद पांडे जो है बनकट ग्राम सभा, अगर आप कंफर्म करेंगे तो आपको पता चलेगा वो आजादी की लड़ाई में शहीद हो गए थे। आप ऐसे लोगों के शहादत का अपमान कर देते हैं। तो मैं अशेम्ड हूं उस देश में जहां पे इस तरीके की चीजें कही जाती 2014 के बाद में आई हुई है। मैं अशेम्ड हूं। पूजा मिश्रा जी, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि द समाजवादी पार्टी हैज मूव्ड फार अवे फ्रॉम द आइडियल्स ऑफ राम मनोहर लोहिया जी। आपने राम मनोहर लोहिया जी के आइडियल से बहुत दूर चले गए। राम मनोहर लोहिया जी भगवान राम, भगवान कृष्ण, आदि शंकराचार्य के फिलॉसफी पे आगे चढ़कर बोले कि इफ यू डोंट फॉलो दिस फिलॉसफी यू कैन नॉट डू पॉलिटिक्स। दैट वाज राम मनोहर लोहिया जी। संभल में योगी आदित्यनाथ ने कहा बहुत सारे डिस्ट्रॉय हो गया और उस चीज को मुझे वापस लेना पड़ेगा, बिकॉज 54 श्राइन्स को इस सरकार ने रिस्टोर किया है, जो एक प्लान के तरफ, एक खुफिया एक प्लान के तरफ डिस्ट्रॉय करके उसको बंद कर दिया था हर चीज को। तो डोंट यू थिंक एक तो राम मनोहर जी के आइडियोलॉजी से दूर चले गए, और अगर कोई विरासत को बचा रहे उसमें आप मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रही हो। पूजा मिश्रा जी। प्रदीप जी, मिस इन्फॉर्मेशन तो पहले मिस इन्फॉर्मेशन कौन स्प्रेड कर रहा है ये बहुत जानना जरूरी है ना। जब मुख्यमंत्री जी, वाकई में वो शर्म लगती मुझे कि बैठ खड़े होते हैं सदन में। 1978 में संभल में विपक्ष की सरकार ने, वहां पे हिंदुओं का नरसंहार हुआ। फैक्ट चेक कर लीजिएगा। 1978 में जनता पार्टी की सरकार थी और 1978 में नरेश यादव जी जो है मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में रामदास जो है मुख्यमंत्री थे, वो भी जनता पार्टी की सरकार थी और उस वक्त ये कृत्य हुआ था। तो ये तो मुख्यमंत्री हमारे झूठ बोलते हैं। और अभी उन्होंने जो है कहा आपने राम मनोहर लोहिया जी, हालांकि शोभा नहीं देता राम मनोहर लोहिया जी के बारे में कहना, क्योंकि राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसदें आवारा हो जाएंगी। और यहाँ पे तो सड़कों को सुनसान किया जाता है। अगर छात्र आ जाएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए तो उन पे लाठी भाज दी जाएगी, अगर किसान आ जाएंगे तो कीले लगा दिए जाएंगे, और अगर पहलवान आ जाएंगे तो उनको जो है उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। उसके बाद वो करें शंकराचार्य। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के बारे में इन सरकार ने क्या क्या नहीं कहा। वो शंकराचार्य नहीं है। आप झूठ फैला रहे हो। अगर आपको जो है कार्य करना है, मुझे लगता है कि अब भाजपा को एक चीज तो छोड़ देनी चाहिए, वो ये है कि विपक्ष के पीछे छुपना। मैं हमेशा कहती हूँ अगर हर चीजों के लिए विपक्ष जिम्मेदार है तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप जिम्मेदार हैं।
अगर आपके पास में साक्ष्य है, आप पूजा मिश्रा पे कार्रवाई करिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे कार्रवाई करिए, आप करिए एक तरफ से कार्रवाई। मिश्रा जी, ये one second, ना ma'am. आपके हाथ में। 1 सेकंड मैम, आपने जो कहा ना, लोगों को जरा समझा दिया जाए। पीपल हैव ए वेरी शॉर्ट मेमोरी। लोगों की मेमोरी जो है, याददाश्त बड़ी बड़ी कम है। आपने राम नरेश यादव जी की बात करी। राम नरेश यादव जी उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे 1978 में। जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन ये कहना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया था। यानी ये वही पार्टी है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, लाल कृष्ण आडवाणी भी थे, मदन लाल खुराना भी थे, विजय कुमार मल्होत्रा भी थे। ये सब लोग थे। दुरुस्त बात है। तो ये याद दिलाना लोगों को बहुत जरूरी है, क्योंकि विपक्ष की सरकार नहीं थी, इनकी खुद की सरकार थी। जी अब आप बोलेंगे। मगर दूसरी चीज, वन सेकंड प्रदीप जी, पूजा मिश्रा जी, एक चीज के ऊपर मैं आप चाहूंगा कि आप जरा रोशनी डालें। अली दारूवाला साहब ने महाकुंभ को लेकर के आपको कहा कि शायद आपको नॉलेज नहीं है। मुझे लगता है कि उनको शायद मालूम नहीं है कि आप वहीं की रहने वाली हैं। तो जरा आप उनको बता दें कि महाकुंभ में आपका खुद का व्यक्तिगत तजुर्बा क्या रहा, वो जरा बताएं प्लीज। प्लीज तो बताए ना, उनकी दुकान नहीं चल रही थी वहां पर, उनकी दुकान थोड़ी साइड में थी। दुकान नहीं चल रही थी, चलिए कोई बात नहीं। जो है, नहीं मैंने दुकान वहां पे नहीं लगाई हुई थी, ठीक है। मैं बिल्कुल साफ कर देती हूँ कि आप कह रहे हैं कि मेरा तजुर्बा क्या था। मेरा तजुर्बा ये था, और आप अगर मेरे जो है बिल्कुल, मैं चाहिए तो वीडियोस भेज दूं। मैं एक बार डिबेट में बैठी हुई तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि अरे मरम्मत चल रही है पीपा पुल पे, एक तरफ स्नान चालू हो गया, वो दूसरी तरफ मरम्मत चल रही। तो नेचुरल में कहा, मैं दूसरे दिन गई, मैंने कहा चलो बनाते हैं वीडियो फोटोज के साथ में कि कहाँ किस पुल नंबर पे। मैं तो आपको बता सकती हूँ कि किस पुल संख्या पे कब कब कौन कौन सी पुल संख्या बंद रही, किस किस दिन पुल संख्या बंद रही, क्योंकि मेरे आवागमन का रास्ता ही यही है। मैं झूसी में रहती हूँ और झूसी से कार्य करने के लिए, कुछ भी कार्य करना है, कहीं झूसी मार्केट तो है नहीं, आपको कोई ऑफिशियल कार्य करनी है आपको जाना पड़ेगा इलाहाबाद मेन टाउन में, जो कि होता है सिविल लाइंस, और वो जाने के लिए आपको शास्त्री ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा, जहां पे आपको लगेंगे लगभग 4 से 5 घंटे। महाकुंभ में इस तरीके की व्यवस्था थी। या फिर आपको जाना पड़ेगा मेला क्षेत्र में होकर के, आप जो है सेक्टर 22 पहुंचेंगे झूसी से, सेक्टर 22 से होकर के आपको क्रॉस करना पड़ेगा पीपा पुल। तो मुझे पता है कि मैं जो है रोज जाती थी, और उसके बाद में सारे पीपा पुल एक तरफ से बंद मिलते थे। मैं गाड़ी लेकर के नहीं जाती थी, मुझे था कि मैं 2 व्हीलर लेकर के जाऊं, क्योंकि समस्या 2 व्हीलर में 3 घंटे जाम लगते थे, तो गाड़ी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आप जो है लेकर के जाइए, और उसके बाद में सारी पीपा पुल बंद। जब भीड़ बढ़ गई तो और पीपा पुल बंद। और मौनी अमावस्या का स्नान का भी मुझे जो है, मैंने स्नान भी किया हुआ था, और मौनी अमावस्या का स्नान का भी मुझे दृश्य याद है। मैंने सुबह के 4 बजे स्नान किया हुआ था, झूसी घाट पे स्नान किया हुआ था, जहाँ के भगदड़ को छुपाया गया हुआ था, और मैंने मलबे को खुद देखा हुआ था। और मैं वहां पे न जाने कितनी बार डरी थी कि भगदड़ मच जाएगा। और मैं और मेरा भाई गया हो, तो मैं बार बार भाई कह रही थी कि अपन वापस चल लेते हैं, क्योंकि फिर वापस मुड़ने का कोई स्पेस ही नहीं है। वो एक रास्ता ले के जा रहे हैं, और वहां पे जाते आप पहुंच रहे, पीछे से भीड़ है, गाड़ी और कुछ पूरे भीड़ लोगों की, वो आ ही रहे, उनको आपने बंद नहीं किया। कोई दूसरा रास्ता नहीं, बाहर जाने का रास्ता नहीं, यू टर्न लेने का रास्ता नहीं, और आपने बंद कर दिया। और बंद करने के बाद में आप कहते हो कि नहीं आप यहाँ से नहीं जा सकते। भाई तो कहाँ से जाएंगे, उधर तो मचेगी ही मचेगी। पूजा मिश्रा जी, अभी महाकुंभ के बाद, पूजा मिश्रा जी, लोगों को सड़के पे छोड़ा। आप महाकुंभ के बाद अभी होली से घबरा गए हो। समाजवादी पार्टी, होली एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है, पूरे उत्तर प्रदेश छाने वाला है। महाकुंभ जैसे जबरदस्त तरीके से हुआ, होली शायद उससे भी अच्छे तरीके से होगा। तो आप डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड करने लगे योगी सरकार के बारे में, ये आप पे आरोप भी है। अगर हम मिस इन्फॉर्मेशन जो है स्प्रेड कर रहे हैं तो साक्ष्य साथ में आए। हम तो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है, आप कार्रवाई कर लीजिए। आप मिस इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना आपको, प्रदीप जी, क्यों नहीं FIR करते? आप करके तो देखिए ना कि कौन मिस इन्फॉर्मेशन। मैं कह रही हूँ कि जो है यही हालात थे मौनी अमावस्या के दिन में। मैं बता रही हूँ कि जो है मौनी अमावस्या के रात के बाद में आपने 50 लाख होली में क्या तकलीफ है? उनको जो है इस प्रताड़ित होने दिया। अभी आप होली की बात कर रहे हैं, होली में क्या तकलीफ है? मैं होली पे भी आ जाती हूँ कि होली पे क्या चर्चाएं चल रही है। होली पे चल रही है कि ब्रज में जो है, अब पता नहीं कौन से लोग हैं, मैं उनको हिंदू धर्म का नहीं कहूंगी, क्योंकि हम सभी, आप सभी लोग हिंदू धर्म के हैं। हम में तो कोई आपत्ति नहीं होगी कि मुस्लिम दुकान लगाए नहीं लगाए, रंग बनाए नहीं बनाए, वो आए कि नहीं आए। पर अब ये पता नहीं कौन से लोग जो है, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये इम्प्लांटेड लोग होते हैं। क्योंकि मैंने जब वो लगा था ना कि महाकुंभ में जो है वक्फ बोर्ड के खिलाफ की पोस्टर लगे थे ना प्रदीप जी, तो मैं बता दूं कि मैं उस पोस्टर जिसने लगाया था, मैंने पूरा महाकुंभ ढूंढ के पूरे के पूरे जो है 25 सेक्टर्स में जाकर के ढूंढा था कि भाई किसने लगाया हुआ। मुझे 3-4 होर्डिंग मिली थी, बस एक व्यक्ति की मिली थी। कोई संत तो महंत तो इसको मैं नहीं मानती हूँ, किसी एक व्यक्ति का वो दिखा रहा था कि वो पॉलिटिक्स से इंस्पायर्ड है।
कोई महंत का जो है ग्रुप नहीं कह रहा है उस चीज को। उसके बाद में यही अब ब्रिज में हो रहा है कि नहीं होली पे जो है मुस्लिम नहीं आने चाहिए, इस तरीके की बातें उठ करके आ रही है। और भोपाल में ये हो रहा है कि अब क्योंकि रमजान चल रहे हैं कि रमजान में जो है हिंदुओं से सामान न लिए जाए। आप सोचिए कि हमारा देश अगर लोह पुरुष अगर जो है अगर देख रहे होंगे तो सोच नहीं रहे होंगे क्या कि मैंने किस देश के लिए इतनी मेहनत की हुई थी कि पूरे सबका जो है धर्म जाति को हटा करके जी। सबको एकत्रित करके एक भारत देश बना था। Right, so let's तब go to जाकर के Ali आजादी Darwala के बाद साहब। में भारत एक देश चलता रहा और उसके बाद में आज धर्म और जाति के नाम पे यही डिवीजन चल रहा है कि नहीं अब आप इनके यहाँ से नहीं लेंगे, जी। उनके यहाँ से नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? दुरुस्त क्योंकि अब जो है विधानसभा में ना भाषा के भी जो है धर्म हो जा रहे हैं, जबकि उर्दू भाषा तो भारत देश की है, भारत देश के बाहर की है भी नहीं। पर उसमें भी अगर मुख्यमंत्री एक फ्लूइड लैंग्वेज की बात चलेगी और उसमें जो है भाषा का धर्म निकालेंगे और मुल्ला कटमुल्ला कहने पे आ जाएंगे, तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से जो कॉम्युनल जी। टेंशन अली क्रिएट दारवाला करना साहब। चाहती है सरकार। मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि ये सरकार चाहती है, सरकार की मंशा दारवाला है साहब। और इसीलिए इस तरीके की चीजें निकल करके सामने आ रही क्या है। आप हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की बेइज्जती नहीं कर रहे, ये कहते हुए कि सर, आवाज एकदम बारीक 2014 आ से रही है। हमको आजादी मिली? सर बताइए दारूवाला साहब। राजीव सर आपकी आवाज कम ज्यादा हो रही है। मैं सर एक बात दारूवाला कहना साहब चाहता मैंने हूं। आपसे ये आपके पूछा। माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं मैं आ रहा हूँ, मैंने सुना वो जी, स्वतंत्र सेनानी के बारे में आप कह रहे थे। जी। मैंने कहा हमें आजादी 1947 में मिली, मगर हमें जो असली आजादी है ये देश को जो करप्ट लोगों से जो मुक्त फ्रीडम दैट द सिटीजंस गॉट was in 2014. That is what I said. और I am very clear about, I am not retracting my statement. Point number one. पूजा मिश्रा जी का मैं सुन रहा था लास्ट 15 मिनट्स, वो यही कह रहे थे कि उन्हें उत्तर प्रदेश में रहने के लिए शर्म आ रही। शी इज ashamed. I said, yeah, she is ashamed and she should be ashamed because in the state where she lives now, there is law and order. She is basically ashamed of it. The state where there was arson, people were picked up in daylight, where there was, खन्नी बोलते हैं रैंसम, किसी के भी बच्चे को यूपी से उठाया जाता था। सर हमने जो यूपी के मूवीज देखे हैं ना, हम तो वहां गए नहीं, मैं आपको इतने डंके के चोट पे कहता हूँ, ये जो वहां पे जो एक राम राज्य आज जो यूपी में चल रहा है ना, वो देख के बेशक पूजा मिश्रा जी मैम और उनके पार्टी को शर्म आती रहेंगी। ये लोग बहुत जल्दी आज यूपी छोड़ के जाने की तैयारी में है। ये बेशक इनकी गर्दन शर्म से नीचे झुक रही है, क्योंकि इन्होंने जो किया सुशासन, इन्होंने जो किया दुरुपयोग, इन्होंने जो किया पूरा पैसा ऐंठने का काम, ये अब लोगों के समझ में आ रहा है। अब उस सब जब इंफॉर्मेशन जब लोगों के पास आ रही है तो इनकी गर्दन शर्म से नीचे जा रही है, बेशक जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी योगी जी और मोदी जी के राज में हमारी गर्दन तो यहाँ पे गर्व से ऊंची हो रही है। क्यों नहीं होंगी सर? योगी जी ने जो आज यूपी में काम किया, यहाँ पर जो इनके जितने स्टॉलवर्ड प्रोजेक्ट्स थे उसे आगे लेके जाने का काम योगी जी ने किया। यहाँ पे नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस बिल्कुल नहीं किए। और मैं देख रहा हूँ ये पूजा मिश्रा मैम के एक उनकी मंशा से मैं कहता हूँ, ये बिल्कुल कुंभ मेला में एक केओस पैदा करने के लिए ये मुद्दा मेरे देखिए जबरदस्ती बाइक लेके रास्ते पे निकली है। मैं आपको लिख के देता हूँ, ये कह रहे कि 4-4, 5-5 घंटा ट्रैफिक जैम है। मैं आपको लिख के देता हूँ, दिस वुमन मस्ट बी रोमिंग अराउंड इन कुंभ मेला, फाइंडिंग फॉर ट्रबल, फिशिंग फॉर सम मिस्टेक्स rather than helping citizens, dropping them। मुझे उनसे पूछिए यहाँ पर उन्होंने बाइक पे किसी को लिफ्ट दिया कि नहीं दिया? अगर जिसको यहाँ पे गुजरात जरूरत के लोग थे उनसे किसी को पूछिएगा कि मैंने दिया कितनी कि लिफ्ट नहीं दी दिया? होती, आप चाहे तो मेरा क्या नंबर भी मैंने उनको बताइए? दिया हुआ था। आपके क्या बातें लोगों करते हैं हम लोग, उस पर मदद चर्चा नहीं करना करने- चाहते। one second, वो हमारा पूजा धर्म मैम, बनता है। आप आए होते इलाहाबाद में, आपकी भी मदद करते। हम लोग को बाहर कोई आ जाता था तो पहले जाकर के रात के 12 बजे भी बोलते थे कि कोई आदमी भटक तो नहीं गया हुआ है, उसको रास्ता बता दे जाकर के। क्या बात करते हैं आप? इलाहाबादी पे सवाल मत उठाइए, वो लगातार मदद करते रहे। आपको क्या लगता है हम कांवड़ के समय हो, जो भी यहाँ पे प्रोसेशन निकलते हैं, चाहे वो हिंदू के हो चाहे मुस्लिम को, हम पूरा मदद करते हैं। इस तरीके के प्रश्न नहीं उठाइए। कचरा अगर आपको सत्यता जाननी हो आप बोलिए, हम आपको सत्य भी दे देंगे। प्रत्यक्ष को प्रणवाय की क्या जरूरत है? जो मंशा लेकर जो किरदार का है उसको कुंभ मेला में वही मिला, तो आपको वहाँ पे गंदगी मिली। पूजा मिश्रा जी मैम, इसके आगे मैं कुछ नहीं अच्छा, कहना वो चाहता। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी शर्म के मिली। नीचे क्यों है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी मिली है, आपको पता है? यूपी को बैकवर्ड आपको पता है एनजीटी को भी गंदगी का मिली। सत्यानाश किया है आपने। एनजीटी का जो काम था ना कचरा ढूंढने का, उन्हें वहाँ पे कुछ नहीं मिला।
आपने वहां पर जो आपने ढूंढा वो आपको मिला, जिसने वहां पे राम एनजीटी को और ढूंढा, सेंट्रल उसको पोल्यूशन राम कंट्रोल मिला। बोर्ड को भी मिला जिसको हुआ वहां है। पर देखिए, श्रद्धा बिना ढूंढा, तथ्य के उसको बातें शंका मैं नहीं मिली। करती हूँ और जहाँ इसलिए मैं पर जो यहाँ है पे बिना जहाँ तथ्य पे के बातों को जिसको सुन भी नहीं ढूंढना पाती वो हूँ। उसने मिला। आपने कोई एक गंदगी फैक्ट ढूंढी, बताइए आप। आपको गंदगी मिली पूजा मिश्रा मैम। आप लोग सिर्फ जो From है your वो करते हैं, आपके from your नेता state बयान of दे देते mind, हैं, आप I उनको can जो है tell ले you, लेते हैं कि 10 you नेताओं are ने हमारे ये wishing बयान for दिए, trouble। हमें यही आप जो रिपीट घूम रहे करना थे ना, है। आपकी हाँ, बाइक कुछ भी लेकर, स्टडी कर दारू लीजिए, वाला आप साहब, होमवर्क कर लिया यहाँ पे करिए। सब दारू- आप मुझे ये दारू- करें, दारू- करंट वाला मूवी साहब, मैं जानता हूँ उत्तर उनको प्रदेश को। आपकी दारू- एक भाई नेचर मूवी से समझ समझ जानिए, में आ आइए गया। उत्तर प्रदेश, दारू जाइए वाला- उत्तर प्रदेश। दारू वाला साहब, दारू वाला Mela साहब, को दारू वाला साहब, paint the full Kumbh Mela with a paintbrush. You have not been successful. The credit has been given and the gods have seen. और इसकी जो Of बरकत है course, the योगी God जी मोदी has जी को मिल seen. जाएंगी। God has seen the sin of our government. The God has seen. Maybe you fail to see it. Maybe the government failed to see it, but the God has seen. डॉक्टर And we दारू know वाला, that. The Doc- people Please carry of on. the Please carry people on. of Allahabad has seen this. पूजा मिश्रा मैम 28 And as, लाख लोग and as आपका doctors, we ये have डिबेट seen सुन the रहे हैं number अभी। of skin infections. People have come back and they have been having all these skin infections. They have been having fungal infections and whatnot. And the E. coli strength has increased Again, so much. again, and all again, look these at things this, were not Dr. handled Ma'am. properly. She's talking about all these infections. वो ये नहीं कह रहे कि मोक्ष पाके 65 करोड़ लोग वापस पहुंचे हैं। वो उनको नहीं दिखा। उनको And लोगों the के people who infection died, दिखे। Doctor, we'll see that only. where no? did they go? The people who died, whose death you didn't even acknowledge. You are not even accountable to them. Very sad. This is the People are most sad searching for their incident family that has members. happened. The People are most sad struggling to get incident the that death has happened. certificates I of their family condemn it. members. Even your party people are struggling to get the death certificates of their family members. But no, only these 30 people are declared dead by the government. Extra than this, nobody, कोई भी हो जाए उसको हम कुछ नहीं करने वाले हैं। डॉक्टर इस तरीके से वाकई में चलो सच्चाई मैम, है। भगवान 30 देख रहा है, कबूल ईश्वर किया। देख रहा है और ईश्वर Last आपको नहीं decade क्षमा में करेगा। 3000 माँ कह रहे गंगा थे। नहीं माफ करने वाली आपको। Ali Dharwala माँ साहब, गंगा नहीं come माफ back करने to, वाली I just आपको। want to come back to what Dr. Malhotra says. महिला सशक्तिकरण के बातें देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं, पैसा ट्रांसफर करने वाली बातें कर रहे हैं, but our union cabinet minister रक्षा खड़से को खुद पुलिस स्टेशन आना पड़ा। सुप्रिया सुले जी कह रही है, खुद पुलिस स्टेशन आके सीनियर इंस्पेक्टर के सामने बैठना पड़ा अपने बेटी को न्याय दिलाने के लिए। अली दरवाला साहब, now what does that show? That even the minister's central minister's union cabinet minister's daughter is not getting justice in Maharashtra. She had to camp and come and sit in the police station to see the justice is done. How do you see that, Darwala sahab? See what Supriya ma'am has said. I totally agree. रक्षा खड़से मैम के साथ में जो वहाँ पे ईव टीजिंग हुआ, ये निंदनीय है। ऐसे लोगों का हमारे सीएम साहब ने खुद निंदा करी है। इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होएगा। ये ईव टीजिंग विल नॉट बी टेकन लाइटली. इट शुड नॉट हैपन. इट इज अनटॉलरेबल. आई एम अश्योरिंग यू दैट दिस शुड नॉट हैपन. एंड इफ इट हैपेंस, लिसन टू मी, एंड इफ इट हैपेंस अगेन, आई कैन अश्योर यू देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट है, ये किसी को माफ नहीं करेगा। ये जो हुआ निंदनीय है, इसके लिए आई एम अशेम्ड ऑफ इट। Dr. Malhotra, Supriya. See, basically the thing is that they are promising everything, but there is people are not scared of the law and order. Law and order का मतलब वो खौफ ही निकल गया है लोगों से. So people feel कि हाँ देवेंद्र फडणवीस बोलते तो है मगर कुछ एक्शन होता नहीं है किसी के ऊपर. तो इसके लिए people, all these youngsters and all, they started taking it lightly. और एक तो ऐसा है कि लोगों को काम नहीं है कुछ. जो यंगस्टर्स है ऐसे ही पड़े रहते हैं. देयर इज ड्रग्स वगैरह सब इंक्रीज हो रहा है. सो this the holistic approach has to be there. Something has to be seriously done about Maharashtra. Otherwise where Maharashtra is going? बातें करना ठीक है कि हम लोग कुछ एक्शन लेंगे, तुरंत कर देंगे, बट देन नथिंग इज बीइंग सीन. ये कोई बातें ही रजिस्टर हो रही है. व्हाट अबाउट द एक्शन? जैसे उन्होंने बोला था कि स्वारगेट में भी बस में व्हाट इज हैपनिंग, जहां पुलिस चौकी इतनी नजदीक थी वहां पे भी ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं. और लोगों मतलब उनको मानने के लिए एवरीबडी, ऑल द मंत्री वगैरह उन्होंने स्टार्ट किया. बीजेपी के काफी लोग बोलने लगे कि नो नो नो, देयर मस्ट बी समथिंग प्रॉब्लम विद द लेडी. व्हाई इज इट दैट ऑलवेज देयर इज अ प्रॉब्लम विद द लेडी? व्हाई कांट अ सिंपल थिंग बी अंडरस्टूड? I mean, a person can be so frightened, person can be paralyzed with fear that she may not protest at that time.
That doesn't mean that she is consenting to the whole thing. So this a very bad narrative goes on, even after the crime has happened. So all this has to be taken. I mean, if you say that you want to make Maharashtra free of all these things, then actually take action. Let the people see the action. Let the people feel Yeah, that ma'am. you are No, I really agree with serious you. about I'm it. not. Right. Tarwala Saab, are you talking to somebody In else? 24 hours, ma'am, on record, let it be viral. In 24 hours, the rapist, I am not saying alleged, the rapist was arrested, and you will see law will take its due course action. Ma'am, you should have appreciated that the rapist was caught in 24 hours. Well, what happened is again with all these incidents, my neck goes down with shame. And I will tell you, and I will say it on this prestigious channel, this should not happen. I want to ask you, Dr. Malhotra ji, Rohit Pawar was slightly disturbed कि शरद पवार साहब ने उनको वो शैडो कैबिनेट में शामिल नहीं किया, शैडो कैबिनेट में शामिल नहीं किया बिकॉज शैडो कैबिनेट पवार साहब ने बनाया है कि महायुति के मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल बनाने के लिए आर दे रियली डूइंग द वर्क, फाइंड आउट व्हाट दे आर डूइंग एंड एक्सपोज देम. रोहित पवार फेल्ट वेरी सॉरी कि 7 साल से मैं मेहनत कर रहा हूं और मेरा जो मेहनत है उसको किसी को पसंद नहीं आया, नो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए. How do you see? Is Rohit Pawar going to be there? Probably he might move out. How do you see that, Dr. Malhotra? Rohit Pawar, he will not move out. It is okay when something is declared somewhere, everybody wants some post or the other. But Rohit Pawar ji is also very well appreciated. He is a very dynamic youngster. So definitely Pawar sir must be having something for him. As he also said, कि maybe there is something that is waiting for me. So we are also hoping that. Right. He is very dynamic and very, क्या बोलते हैं ना? So you have anything to say about Operation Tiger, ma'am? Dr. Malhotra, Operation Tiger. ऑपरेशन टाइगर में क्या है, यहाँ तक प्रश्न जो है कि टाइगर कौन है और ऑपरेशन टाइगर मतलब शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के साथ जितने लोग बचे हैं वो भी इस तरफ आ जाएं. ऑपरेशन टाइगर तो वो हो गया ना, वो एक ऑपरेशन लोटस चल रहा था, अभी ऑपरेशन टाइगर शुरू हो गया है. ये हो क्या रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा कौन कौन सी पार्टी में है, कौन किसके साथ है. रिमेन टुगेदर, whatever it is, छोटी बातें इधर उधर होती रहेंगी. जी. जो बेसिक मुद्दा उनका है, they are all together and we will definitely see that. थोड़ी नोकझोंक तो होनी चाहिए ना, that's life. So they will be all together. All right, ma'am, thank you very much. I just want to ask पूजा मिश्रा जी, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि महाकुंभ के बाद योगी आदित्यनाथ खुद सफाई कर्मी के साथ बैठकर उस पूरे क्षेत्र को, त्रिवेणी संगम और पूरे अलाइड एरिया को साफ करने के कैंपेन में चले, उनके साथ मिले, उनके साथ भोजन किया, उसके बाद हेल्थ कर्मीज के साथ मिले, हेल्थ कर्मीज को मोटिवेट किए, उनके साथ भोजन किए, उनको पैसे दिए, अप्रिशिएट किए उनका, फिर किसान और नाविक, तो एक से एक लोगों से मिलकर योगी आदित्यनाथ, एक स्टोरी उन्होंने बताया कि एक जो नाविक है 30 करोड़ रुपया कमा लिया, 30 crores. Now that's a fascinating thing that everybody has earned money. जैसे दारूवाला साहब कह रहे हैं कि जिसको जो मिलना था उसको भगवान ने दे दिया वहां पर. Where is the problem? 30 करोड़ अगर एक नाविक कमा सकता है. पूजा मिश्रा मैम को क्या मिला, वही मैं जानना चाहता हूँ. Now we are asking, how do you see पूजा मिश्रा जी, योगी आदित्यनाथ जी का ये स्टेटमेंट, किस जो एक नाविक है 30 करोड़ कमा लिया. मैंने बिल्कुल वो नाविक वाला न्यूज देखा था, मेरे को भी काफी जो है लग रहा था कि अगर कमाई किया, अगर नाविक कह रहा है खुद से तो बिल्कुल ठीक है, नाविक एक्सेप्ट कर रहा है. हालांकि वो समय भी देखा था कि जो सारे नाविक जो नए जो है लोन ले लेकर के नाव बनाए थे महाकुंभ से पहले, क्योंकि उनको घाटों से हटा दिया गया. क्यों? क्योंकि अब ये जो है घाट महाकुंभ के लिए हो गए, सरकारी रहेंगे, नाव वाले आप जाइए, आप निशात जाइए. उन्होंने प्रोटेस्ट किया, मुझे लगता है कि आपके जो है आपके चैनल में भी उसको रिपोर्ट किया होगा कि नाव बिल्कुल लंबी लगा करके 16 किलोमीटर तक की पूरे नाव वालों ने लगा करके प्रोटेस्ट किया कि यही तो हमारी जीविका है, हम इसी को 12 साल से इंतजार कर रहे थे और जब ये मौका आ गया, हमने लोन ले करके जो है अपने नाव को बनाया, तो फिर जो है वो आप करने नहीं दे रहे. अभी आपने बोला कि जो है वो जो मजदूर होते हैं उनके साथ में भोजन किया. आपको पता होगा 2019 में प्रधानमंत्री जी ने पैर पखारे थे जी. वो मजदूर कहाँ पहुंच गए? हमें लगता है कि आप पैर मत पखारिए, आप भोजन मत करिए, आप कार्य करिए, उनके साथ में उनका तरक्की होना चाहिए. अभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का मैंने बीच में चर्चा सुना था, आपको पता होगा कि कितना 638.05 करोड़ एलोकेट हुआ था, जिसमें से 401.04 करोड़ सिर्फ और सिर्फ प्रचार में चला गया. मतलब 58%
प्रचार में। और वही चीज आपको यहाँ महाकुंभ में भी देखने को मिली होगी। अगर जब जिस टाइम मुझे लगता है कि रिफ्लेक्शन होकर के आएगा, ये तो सरकारी आंकड़े हैं, रियल आंकड़ों को मैं हटा देती हूँ तो भी, तो आपको पता चलेगा कि कितना चीज मूल में इस्तेमाल हुआ है, कितना बाहर चला गया हुआ है। हालांकि जो मुंह पता नहीं। जी राइट, थैंक यू सो मच। बात की गई मजदूरों को भी समाजवादी पार्टी ने कहा था, इसलिए की गई। वो कहते हैं कि आपने कहा मान लिया गया तो भी आपको आपत्ति हो रही है। मतलब समझ में नहीं आता कि आप जो पार्टी कहती है, आप कहते मान लिया तो भी आपको थपथपाना चाहिए कि नहीं, हमने कहा था और आपने कहा था, हमने मान लिया। इसके अलावा क्या उनके लिए कार्य करेंगे, उस पर चर्चा होती नहीं है। मत खाइए साथ में, मत बैठिए साथ में, उनके लिए जो जरूरी आवश्यक चीजें हैं वो कर दीजिए। मैम चलते चलते ये बता दें, जो टीचर्स की भर्ती होने वाली थी वो हो गई क्या मैम? वो टीचर्स की जो भर्ती होने वाली हुई है, मैं बताती हूँ राजीव जी, एक बड़ी मजेदार चीज होती है कि 2022 में पीजीटी का फॉर्म मैंने भरा था, मुझे डॉक्टरेट अवार्ड हो जाएगी अप्रैल में। अब मैं ना असिस्टेंट प्रोफेसर का भर रही हूँ, राजस्थान का आया हुआ है, आईआईटी दिल्ली में वैकेंसी आई हुई है। तो मेरा जूनियर भी कह रहा था मुझसे कि मैम इनको जब एग्जाम कराना नहीं था तो थोड़ा लेट कर देते, हम लोग भी भर पाते। तो ये सच्चाई है, इन्होंने सुपर टेट नहीं कराया। छात्र सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अगर वो बोलते हैं, ये इतना जो है तानाशाही हो रखा है ना, मुझे लगता है कि जिस दिन ये छात्रों को मौका मिलेगा, जिनको आपने जो है मन की बात की 2014 में, वो 12th में थे और आज जवान होकर के बेरोजगार बैठे हुए हैं, और आप कहते हैं कि ये लायक नहीं है, इसको नौकरी नहीं मिल रही है। और बिहार में जितनी नौकरियां उत्तर प्रदेश के बच्चों को मिली है, मुझे लगता है उतनी तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं मिली हुई है। हमारे कॉलेज से ही हम लोग चाहे तो बिल्कुल लंबी थोड़ी लिस्ट दे सकते हैं, जो है कहीं कोई प्रवक्ता हो गया हुआ है, लेक्चरर हो गया है, कोई जो है स्कूल में टीचर हो गया। मेरा खुद का, मेरे लैब से जो है मेरे से 3 साल जूनियर, अभी वो बिहार में टीचर है, लेकिन यहाँ पे उसको एग्जाम ही नहीं हुआ। जब एग्जाम होगा नहीं तो आप जानेंगे कैसे प्रतिभा। तो ये उत्तर प्रदेश की धरातल की सच्चाई है, और ये जब मौका दिखेगा ये उसका जवाब। अली दारूवाला साहब, वुड यू लाइक टू से समथिंग ऑन दैट सर? दारूवाला साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? आवाज आपकी बिल्कुल जीरो आ रही है सर। अभी आवाज आ रही है सर? जी हुकुम वाली हुकुम। अभी जो पूजा मिश्रा जी ने कहा किस प्रकार टीचर्स के एग्जाम तक नहीं हुए हैं, उस विषय के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? अगर एग्जाम नहीं हुए तो भर्ती कैसे होगी, बताएं सर। Exactly, Rajiv sir, what has happened in her localized area, I'm not aware of it, but I know that there was a paper leak issue 2 months back, which we did a debate, and Honorable Dharmendra Pradhan ji said, I will look into it. That episode is still under investigation. Maybe that could be the reason why these exams have been postponed, but they will definitely be taken. ये एग्जाम और ये भर्ती जो है, इसके ऊपर सर 10 साल से नहीं हुई, इसके ऊपर 1 सेकेंड, इसके ऊपर कुछ तो एक नियमावली लाके, एक ट्रांसपेरेंसी लाने में कुछ वक्त लग रहा है, शायद इसकी वजह से। बट अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट हैपेंड इन राजस्थान, वेयर पूजा मिश्रा मैम वाज सपोज्ड टू attend the exam, why it is postponed. This local issue I am not aware of. I am extremely sorry about it, but I will get back with some more information on this. Right. And you can definitely call me and ask me about it. Thank you very much. अली दारूवाला साहब, डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा, पूजा मिश्रा जी, आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। So Pradeep ji, finally Dhananjay Munde goes. Yes, sir. He should have gone 80 days ago. Well, he could have gone 70 days ago, 75 days ago. God knows. I don't know. So if law and order moves in a tortoise space, they can call it tortoise space, because it's moving very slowly. Yes. जो पहले होना चाहिए था, now you need to act for. As I said, it should be seen that you are really acting where there has been problems of law and order. And 90 days is too long a time. I mean, you can't say that you're acted, and when it speaks for itself, it says 90 days. When the when the photographs were available to you earlier also. So you need to answer that question कि आपके पास ये सब फोटो पहले भी अवेलेबल थे, लेकिन यहाँ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बातें थे। आपके बंगले, आपके घर के अंदर, मंत्री के घर के अंदर एक्सटॉर्शन का मीटिंग हो गया है, तो इसे और क्या चाहिए? प्राइमा फेशी ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ओनली ही शुड हैव बीन सस्पेंडेड, हिज रेजिग्नेशन शुड हैव बीन एक्सेप्टेड। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने इनका रेजिग्नेशन बहुत पहले मांगा था। जैसी ये चीज़ बाहर आई थी, इसलिए वो सुधीर ढस साहब जो हैं वो इतना ज़्यादा चिल्ला रहे थे धनंजय मुंडे को लेकर के। अब आफ्टर ऑल ढस इज फ्रॉम द बीजेपी, ही कुड नॉट हैव डन व्हाट ही डिड विदाउट परमिशन फ्रॉम मिस्टर देवेंद्र फडणवीस। लेकिन फडणवीस साहब
अभी कोalition में है, अलायंस में है, ठीक है, उनकी खुद के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, एकनाथ शिंदे साहब भी साथ में है, लेकिन ही नीड्स अजीत दादा पवार टू बैलेंस एकनाथ शिंदे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच politically his hands were bound, but finally he has managed to succeed, and for that he must be congratulated that at least this fellow is gone. Rightfully speaking, Mr. Dhananjay Munde ought to have resigned long time ago, and if he is innocent he should have said, hey listen, I don't know a thing about this, मेरे नाम पे कौन क्या क्या कर रहा है मुझे मालूम नहीं है, सीधी बात है, ऐसा बोलना चाहिए था. सर आज भी अगर फडणवीस जी कह रहा है कि more than 250 murders have taken place in the last few years, that means the facts are known to him. Yes. Now the facts are known to him. He knows that the extortion amount took place, a meeting took place in Dhananjay Munde's house. He knows about the rupee 1 crop insurance के जितने भी गपले हैं, from where it's originating, especially from Beed and Parbani and some other areas. So, if as a home minister and chief minister you have these information available to you. Now, if you say that मैं पहले बोला था, ये कहा था, मैंने सोचा था, it doesn't. It's how you are acting. Your action counts for it. प्रदीप जी, यहाँ पर हम परबनी की हत्या को जरा भूल गए. That is on the back burner. उसके बारे में कोई खास बातचीत नहीं हो रही. जो परबनी में भी इस प्रकार निर्मम हत्या हुई, it was in police custody, death in custody. I think perhaps the time has come to take that up too, and take that up in a proper way. I wish the Congress could have done it, but they haven't. They seem to have forgotten about it at the moment, just like they. And Rahul, as you said, rightly said, Rahul Gandhi ji was the first person among the top leaders, central leaders, to go and visit Parbani. That's right. And rake up that issue. And then I think probably the local leadership has not followed it up the way it should be. Even today they are not following. They are not following up even today. In fact, वो क्या नाम है सर उनका, अपने जो सबकाल साहब जो बने, न्यू चीफ, वो सबकाल साहब जो बने, हर्षवर्धन सबकाल साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से वो परभनी का जो विषय है, जहां पर एक दलित नेता की निर्मम हत्या हुई, पुलिस कस्टडी में उनकी डेथ हुई, मुझको ऐसा लगता है कि उसको बहुत अच्छे तरीके से उनको लेना चाहिए कांग्रेस को, मुझको ऐसा लगता है. अब आगे उनके ऊपर है, बट कंग्रेचुलेशंस टू मिस्टर फडणवीस, ही इज फाइनली सक्सीडेड इन गेटिंग द रेजिग्नेशन of Mr. Dhananjay Munde. Well, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप देखते रहे नेशन नाउ, प्रदीप जी और मेरी तरफ से. और वो बेल भी बज गई साहब, घंटी बज गई. The Irish clock that strikes me. प्रदीप जी, Irish clock. Disbelief. The last one cast a shadow of doubt on all the way to 12. तो आप जो है मतलब चैनल को जरा सब्सक्राइब भी जरूर कर दें. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram.